اسرائیل اور امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جاہلوں سے پنگا لیا تھا، اب کسی عالم سے پنگا لیا ہے، اور عالم سے پنگا لینا انہیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایران کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں سپر طاقت جو سمجھ رہے تھے، انشاءاللہ اگر 4 سال نہیں 10 سال بھی اگر جنگ ہوگی تو یہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ کہ آج پوری دنیا میں خامنہ ای صاحب کا وہ جملہ پوری دنیا کے دلوں پہ نقش بن کر آ گیا، وہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ ہمیشہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کو امام حسین کی دعا لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں ہمیشہ ہر مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر دھرم کا پالن کیا جاتا ہے، کہ پوری دنیا میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو مظلوموں کی حمایت میں ہے۔ ایران صرف یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شیعہ مظلوم ہو رہے ہیں، نہیں، جس پہ بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایران بنفس نفیس اس میں کود پڑا ہے، کیونکہ امام حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں پیش کر کے بتایا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اسلام کا بول بالا کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ بعد بھی رہے۔ ارے جو خانہ کعبہ کے نزدیک میں لا کر ننگا ناچ کروائے ان کو سعودی حکومت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے تو پوری دنیا کو دیکھا سوشل میڈیا پر، وہ ان بچوں کو نچاتے ہوئے دکھایا گیا جو خانہ کعبہ کے قریب لا کر ان کو نچانے کا پروگرام رکھا گیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں مذہب جو ہے وہ ایک تحقیق کا مذہب ہے، اور ان کے ہاں جو صرف ایک مذہب کا خیر، یعنی انہوں نے ایک مذاق اڑا رکھا ہے پوری دنیا میں۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، ابھی میں نے اپنی تقریر میں کہا، یہ ایک گلدستہ ہے، یہاں پر ہر طریقے کا پھول کھلتا ہے۔ آپ سرزمین ہندوستان دہلی میں جنتر منتر پہ یہاں پر اکٹھا ہو کر جمع ہو کے آپ میمورنڈم پیش کر رہے ہیں۔ آپ سعودیہ میں جائیں گے، آپ کو کوئی میمورنڈم نہیں پیش کیا جانے دیا جائے گا، آپ کے اوپر سختی کی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ کہا جاتا ہے یہ تو ایران میں بھی ہے نا، دیکھیں وہاں بھی آندولن کی انومتی نہیں، وہاں پر جو ہمیشہ دیکھیے اگر انومتی نہیں ہوتی تو وہاں کی بیٹیاں آج پروفیسر نہیں ہوتی، اگر وہاں پر پابندیاں ہوتی تو وہاں کی بیٹی کوئی پائلٹ نہیں بنتی، اگر وہاں پر پابندیاں ہوتی عورتوں کے اوپر تو آج ہماری بیٹیوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتی۔ 80% بچیاں ڈاکٹر ہیں، اچھی بچیاں ہماری وہاں پہ انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے طالب علم، ہندوستان کی طلبہ وہاں پر کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے۔ وہاں کے راجا تھے شاہ، تو انہوں نے کیوں چھوڑنا پڑا؟ نہیں، شاہ دیکھیے، شاہ جو چاہتا تھا، وہ شاہ جو چاہتا تھا ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میری حکومت مانی جائے، جس طریقے سے یزید چاہتا تھا کہ اسلام کے لباس میں میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاؤں اور دنیا کو بتاؤں نہ کوئی دین تھا نہ کوئی قرآن تھا، یہی شاہ بھی چاہتا تھا۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے اس شاہ کی حکومت کو نیست و نابود کر کے بتا دیا اور یہ کہا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے، آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو مظلوموں کی حمایت میں ہے۔ ایران صرف یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شیعہ مظلوم ہو رہے ہیں، نہیں، جس پہ بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایران بنفس نفیس اس میں کود پڑا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے فلسطین میں کوئی شیعہ مظلوم نہیں۔ بھگت رہا ہے ایران، کون بھگت رہا ہے؟ لیکن مدد کرنے کا دیکھیے شہادت جو ہے ان کے گھر کی میراث ہے، اس کو مرنے کو یہ نہ سمجھے کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے، یہ بلندیوں سے ہٹ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس گھرانے کی شہادت ہی ایسی سعادت ہے کہ شہید ہوگا تو سعادت ملے گی، کیونکہ امام حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں پیش کر کے بتایا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اسلام کا بول بالا کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ بعد بھی رہے اسرائیل اور امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جاہلوں سے پنگا لیا تھا، اب کسی عالم سے پنگا لیا ہے، اور عالم سے پنگا لینا انہیں بہت بڑا نقصان ہوگا، اور انشاءاللہ اس لیے نقصان ہوگا کیوں کہ انہوں نے دیکھ لیا۔ اب اس سے پہلے کیا امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے راشٹرپتی آئے، کیوں نہیں پنگا لیا؟ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس سے پنگا لے لیا گیا تو یہ بیٹھی ہوئی قوم جو ہے یہ سوئی بھی نہیں ہے، ان کا ضمیر ہمیشہ سے جاگا ہوا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ خامنہ ای صاحب بنکر میں چھپ جائیں گے، یہ حملہ نہیں کریں گے، 3 دن میں ہم فتح کر لیں گے، 5 دن میں سیز فائر اعلان کر لے گا، لیکن ایران نے بتا دیا میں تجھے بنکر میں چھپا کے رہوں گا، کیونکہ حق کا ساتھ میں دے رہا ہوں۔
ईरान लड़ रहा है, जीत पाएगा लगता है? इंशाल्लाह जीत तो हो गई उसकी, जीत हो चुकी है। क्योंकि जीत इसलिए हो गई है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि आसमानी तो हम फतह कर चुके, अब हम जमीन से भी तुम्हें जीत के बताएंगे कि कल भी हुसैनियों की जीत थी और आज भी हुसैनियों की इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। देखिए जहाँ जहाँ पर भी जुल्म आगे बढ़ेगा ईरान उसके मुकाबले पर आएगा। यही नहीं है कि कोई एक मुल्क है, नहीं नहीं, जहाँ जहाँ पर भी इंसानियत की मुखालिफत होगी, मजलूमों को दबाया जाएगा और उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तो सिर्फ ईरान आवाज उठाता रहेगा। ये तो अभी 5 दिन में इसके तो पैर उखड़ गए। अमेरिका के ट्रम्प जो झूठ बोल रहा था बार बार, ईरान के पास इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि इसराइल और अमेरिका दोनों सुपर ताकत जो समझ रहे थे, इंशाअल्लाह अगर 4 साल नहीं 10 साल भी अगर जंग होगी तो ये डट के मुकाबला करेंगे। क्यों कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, किसी और के ऊपर भरोसा है। वो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की ताकत के सामने कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ी ताकत नहीं है। इन्होंने हमेशा अल्लाह के सामने अपने सर तस्लीम को खम किया है और करते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे कि हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ न कल थे न आज है। तो क्या जो सऊदी में, कतर में जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं, क्या सऊदी को और कतर को इनको हटा देना चाहिए यहाँ से? देखिए सीख लेंगे कैसे? देखिए उसे सीख लेना चाहिए और उन्हें पहले ही लेना चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पहले ही समझना चाहिए था हक किसकी तरफ है और बातिल किसकी तरफ है। वो ये समझ रहे थे कि हम ईरान के सामने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ईरान पस्त नहीं हुआ। ईरान और बढ़ चढ़ के कामयाब होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि उसके लिए आज हक की दुआ हर एक इंसान की निकल रही है। आज अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप अपने कैमरे के उससे जरिए से देखिए, अपने तरीके से देखिए, हर जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और आपके बेहतरीन बेहतरीन जो पढ़े लिखे लीडर हैं, जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लीडर हैं वो भी आज ईरान की हिमायत में बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आज के नहीं है, बहुत पुराने ताल्लुकात है। और इंशाअल्लाह जो दुनिया चाह रही थी कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात खत्म हो जाएं, न कल खत्म हुए थे, न आज खत्म होंगे, न कल खत्म होंगे। शुरू तो अमेरिका ने किया, खत्म कौन करेगा इसको? ईरान इंशाअल्लाह। देखिए फिर मैं कहूंगा, इस्लाम की जंगों को आप तारीख उठाकर देख लीजिए, अली वाले कभी भी ना तो भागते वाके पीछा करते हैं और ना ही अली वाले कभी निहत्ते के ऊपर हथियार उठाते हैं। ये अली की तारीखों में आप देख लीजिए, मौला अली ने जब भी अपना हथियार उठाया, जुल्फ़िकार उठाई है, जालिमों के ऊपर उठाई है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में खामनाई साहब का वो जुमला पूरी दुनिया के दिलों पे नक्श बन कर आ गया। वो क्या कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। और खामनाई साहब की कल भी जीत थी, उनके बेटे ने मुस्तफा ने आज भी जीत करके बता दिया। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान करे, कोई भी करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा नाम लिखने से कुछ नहीं होता, अच्छा नाम रखने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसका कैरेक्टर, जब तक कि उसका किरदार अच्छा ना हो। आप दूसरे मुल्कों में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, मस्जिदों में मार दिया जाता है। हमारे मुल्क को इमाम हुसैन की दुआ लगी हुई है। हिंदुस्तान में हमेशा हर मजहब का ख्याल रखा जाता है, हर धर्म का पालन किया जाता है। हमारे बस्ती में छोलस में छोटा सा प्रोग्राम होता है, हमारा पूरा प्रशासन साथ देता है। हमारा क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर सभ्यता का ये मुल्क है, हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। चलिए, ट्रम्प से क्या कहना चाहेंगे? चलते मैं ट्रम्प से ये कहना चाहूंगा कि ये हथियार डाले और दुनिया को बता दे कि सुपर ताकत अमेरिका नहीं है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, एक गॉड है। सिर्फ सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, भगवान की है, ईश्वर की है, खुदा की है। ट्रम्प कोई ताकतवर नहीं है। संकी हो गए हैं ट्रम्प? नहीं, वो तो संकी नहीं, अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। और जो दिमागी संतुलन खो बैठा है उसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है हम उसके ऊपर दबाव डाले। बयान दे रहे हैं वो कुछ भी बयान देते रहेंगे, उन्हें खुद अपनी पता नहीं है, उन्हें अपनी पब्लिक की पता नहीं है कि उनके अमेरिका में कितनी मुखालिफत हो रही है। उन्हें आज भी ये भी पता नहीं है उनकी मुखालिफत कितनी हो रही है। और दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। अमेरिका में इलेक्शन करा के देख लीजिए, अगर इसके यहाँ के लिए अगर कोई वोट देने को तैयार हो जाए, हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इजाजत दी जाए कि हम अपनी बीबी ज़हरा के रोजे की तामीर करा सके। हम जो है
ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सभ्यता का मुल्क है, यहाँ पर आसार कदीमा की हिफाजत की जाती है। जो जो हमारे मुल्क में पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको महफूज किया जाता है और उनके ऊपर बाकायदा आज पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। लेकिन सऊदी हुकूमत ने, अब्दुल वहाब ने जो जनाब सैयदा के रोजे को मिसमार किया था, वो गुजारिश है कि हमें इजाजत दी जाए कि हम अपनी बीबी के रोजे की तामीर करें और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को बताएं कि बीबी ज़हरा रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी थी। उनको दुनिया ने न जिंदगी में चैन लेने दिया था और न मरने के बाद में, यानी शहीद होने के बाद में। सऊदी का मकसद ये है कि वो सिर्फ और अहले बैत को टारगेट बनाता है। ये सऊदी का नहीं, हर एक जो जालिम हुकूमतें होती हैं, जो मजलूमों की हिमायत में बोलती हैं, उनको दबाना चाहते हैं और उनको ये हमेशा चाहते हैं कि ये हमारे मरहूने मिन्नत रहें। लेकिन इंसानियत, जिसके दिल में इंसानियत है, वो अपने बुजुर्गों को, अपने आसार कदीमों की हिफाजत करती है। लेकिन सऊदिया ये चाहता है, ये रसूल इस्लाम की बेटी ही नहीं बल्कि रसूल इस्लाम के रोजे को भी मिसमार करने की इन्होंने कोशिश की थी। टर्किया ने ये आगे बढ़कर बताया कि नहीं, ये रसूल इस्लाम के रोजे को भी आप तोड़ नहीं सकते। यही वजह है कि रसूल इस्लाम का रोजा आज महफूज है। लेकिन आप देख लीजिए जन्नतुल बकी में जाकर, वहां पर न जाने कितना जुल्म होता है। आप देख लीजिए, आपके हिंदुस्तान में भी प्रोग्राम होते हैं, जहां पर भी आपका धर्मी प्रोग्राम होता है, उसमें चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। ज्यादा उस पर जोर ये दिया जाता है कि नहीं, जितने श्रद्धालु आए उनकी अच्छे से अच्छी खिदमत की जाए। आप इराक में जाए, देखें, वहां पर पानी आपको फ्री में पिलाया जाएगा और सऊदिया में जाइए आप 200 रुपए की 1 लीटर आपको बोतल दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने को बिजनेस बना लिया। करबला में और हज में यही फर्क है कि वहां पानी बांटा जाता है और सऊदिया में पानी को बेचा जाता है। यही मैसेज है आज मेरा इस सरजमीन हिंदुस्तान दिल्ली से। क्या सऊदी ने धर्म को भी बिजनेस बना दिया है? उन्होंने अपने धर्म, उनके यहाँ कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं,